Hello viewers, wheel gauge tolerances, the hidden comedy on Indian tracks. अब ये बोलेंगे कि ये साली कैसी कॉमेडी है या ये 3 पॉइंट पे हम गेज लेते हैं। तो हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं किसी जगह पे तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए और किसी में कहेंगे तीनों का एवरेज ले लो और ये रेंज होनी चाहिए या ये तीन के बीच में इसकी गेज वेरिएशन हो सकती है। आइए इसके अंदर का राज आपको बताता हूँ। रिसेंट एक लोको डिरेलमेंट में I came across huge difference in the wheel gauge taken at 3 points. बात कुछ हजम नहीं हुई, then I browsed तो came across this report. पता चला कि इसमें काफी कुछ खजाना है। वो क्या है मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है कि wheel gauge is the distance back to back of the wheels on a wheel set. The wheel gauge should be checked with wheel distance gauge as annexed at annexure 3. I will show you later on at quarter points. अब मजेदार चीज पढ़ने वाली है कि no variation whatsoever is permitted among the values of wheel gauge measured at quarter points. Point to be noted. A variation in the values of wheel gauge measured at quarter points indicate bent axle. A bent axle on motion will start wobbling, जैसे बैलगाड़ी का पहिया यूं से यूं चलता रहता है, causing severe vibrations between the bearing and the sides. With the white metal fused in hot axle condition, offloading of the wheel will take place. Owing to fatigue, axle could also fracture, journal and consequently greater wear and friction between the two. So, subject to the above condition, actual value of the gauge can vary between the following tolerances: 1600, 1602, 5090. यहां क्या है? नो वेरिएशन। अब ये पॉइंट याद रखने हैं। ये रिपोर्ट किसकी है? और ट्रैक मशीन जो बड़ी मुश्किल से 40-50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और महीने के 30 दिन में से बड़ी मुश्किल 20-22 दिन उसको ब्लॉक मिलता है, और जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसका हम सब जानते हैं, बेस स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन एंड बैक, उसके लिए इतने स्ट्रिंजेंट है, नो वेरिएशन इन व्हील गेज। आगे देखिए होता है क्या। This is annexure 3 which had been discussed in the previous slide, and this is the reading of a locomotive. इस रीडिंग में जो 6 एक्सेल पे ली, तो हर एक एक्सेल पे उसकी व्हील गेज में डिफरेंस रेंज कर रहा है। आप देख ही सकते हैं, मैंने साइड में इसको ले लिया है। ये 0 डिग्री 122 40 पे 1.5 2.5 2.5 9.5 3 3.5 दिस मच ऑफ डिफरेंस। अब यहां वो वेरिएशंस क्या अप्लाई होती है? ये मैंने आरडीएसओ में फिर आरटीआई कर ली क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आ रही थी। तो ये था मेरा इंफॉर्मेशन विच हैज बीन सॉट। आई आस्क्ड फॉर सर्टिफाइड कॉपीज of RDSO instructions, circulars, guidelines, letters stipulating whether variation among 3 equidistant wheel gauge
readings is permitted or not in respect of track machine, locomotive, LHB coaches, goods and other coaching stock. Then मांगा था certified copies of any circular letter standards wherein RDSO has prescribed the extent of permissible variation, if any, among three-wheel gauge reading for the above categories of rolling stock. And then the third was certified copies of internal report, technical justifications or recommendations issued by RDSO that form the basis of adopting different practices, that is no variation to allowed in some cases, and averaging of three readings in other, when all categories of rolling stock operate on the same track. तो ये मैंने क्वेरी डाली थी एंड दिस वेंट टू बोथ डायरेक्टर्स. ये मोटिव पावर डायरेक्टोरेट की रिप्लाई है. उन्होंने कहा कि एज पर रिकॉर्ड रेलिवेंट RDSO डॉक्यूमेंट जो हमने भेजा वही उन्होंने हमको भेज दिया. और फिर दूसरे पॉइंट में भी सर्टिफाइड कॉपीज में वही बोला कि हमारा जो MI है वही हम आपको दे रहे हैं, MPMI जो भी है. और तीसरे का कोई ऐसे इंटरनल उनके को बोले कि हमारे पास कोई रिपोर्ट है ही नहीं. तो जब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं. उसके उपरांत हमने ये उनका जो मेरे को अनेक्सर 3 उन्होंने फिर दोबारा दिया मोटी पावर वालों ने. तो इसमें न्यू व्हील गेज की इन्होंने डायमेंशन दे रखी है 1596 plus minus 0.5 for new wheels, and then we have in service tolerance from 1596 plus 3 to minus 0.5 from 1596. अब इसमें एवरेजिंग व्हील गेज आपकी जो वेरिएशन या टॉलरेंस जो रेंज दी गई है फॉर लोकोमोटिव वो 1595 टू 1599 मिलीमीटर की यह हमें दी गई है. अब ये व्हील एंड एक्सल असेंबली की ये मुझे रिप्लाई दी गई थी डायरेक्टोरेट से. तो उन्होंने यही बोला था कि प्री इंस्पेक्शन ऑफ व्हील वर्कशॉप में जो भी करते हैं, अगर the wheel gauge doesn't fall within the prescribed range of wheel gauge, which is the distance between two wheels from 1600 millimeter to plus 2 or minus 1, then the wheels have to be taken out and repressed. ये इसका जवाब दिया गया है. And for Vande Bharat there is a different gauge what is being used. I hope I have never come across up till now with the drillment of Vande Bharat, भगवान बचाए. And ये इसकी रेंज है 1597 से लेकर के इसकी 1603 तक इसकी रेंज है रनिंग शेड्यूल में. एंड शॉप शेड्यूल में इट्स 1599 and maximum 1600.8. ये फिर मेरे को कैरेज डायरेक्टोरेट का रिप्लाई है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ RDSO इंस्ट्रक्शन स्टिपुलेटिंग वेदर वेरिएशन अमंग 3 इक्विडिस्टेंट व्हील गेज रीडिंग इज परमिटेड और नॉट. सो इन सर्विस व्हील सेट IRCA को बोलते हैं. इन सर्विस व्हील सेट वंदे भारत की इन्होंने जो दी है उसी को मेरे को दे दिया. एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एनी सर्कुलर letter wherein RDSO has prescribed extent of permissible variation, if any, among 3 wheel gauge reading for the above categories. तो इन्होंने extent of permissible variation of 3 readings में specify नहीं की है. ओनली टॉलरेंस है मिनिमम मैक्सिमम में जिसके ऊपर में चलना है, लेकिन ट्रैक मशीन के लिए नो वेरिएशन इज अलाउड. यही हमको खलती है बात. ये ऐसा क्यों है, क्या बेसिस है? बेसिस कुछ नहीं. सो उसमें अभी हम आपको ये समराइज करके बताते हैं कि अभी मेरा बनाने का मोटिव क्या था. ये वीडियो एक्चुअली फील्ड में हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, वेरिएशन अलाउड है या नहीं अलाउड है. तो RDSO की यूनिमैट मशीन्स के लिए जो इन्होंने 170 रिपोर्ट बनाई हुई है
उसमें लिखा है कि वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएशन है वो बेंट एक्सल होगा। बेंट एक्सल होगा तो वो वॉबलिंग करेगा, लेफ्ट टू राइट वॉबलिंग करेगा। वॉबलिंग करेगा तो उसके बेरिंग के ऊपर में लोड पड़ेगा, वाइब्रेशंस आएंगी, उसका वाइट मेटल बाहर आएगा, हॉट एक्सल हो जाएगा फॉर ट्रैक मशीन जो हार्डली 50-60 किलोमीटर की स्पीड पे बड़ी मुश्किल से चलती है, और महीने में 10-12-15 दिन ही काम होता है जितना ब्लॉक मिलता है, और उतनी की वो बेचारी चलती है। लेकिन उसको इतना टाइट करके रखा है कि उसकी व्हील गेज पे कोई वेरिएशन नहीं होनी है। उसका एक्सल बेंड हो जाएगा, उसका बेरिंग खराब हो जाएगा, वो लायबल टू डिरेलमेंट होगी। लेकिन आपके जो लोको हैं 110, 120, 130, 140, 150, 160 पे चलने वाले हैं, उनमें 3 का एवरेज लेना, नो वेरिएशन चलेगी, बेल्ट एक्सल भी चलेगा, नो इशू, नो प्रॉब्लम, बेरिंग भी निकल के बाहर आएंगे। उसके व्हील में वॉबलिंग होगी तो वाइब्रेशन होने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोको है, ट्रैक मशीन नहीं है। फॉर कोचिंग एलएचबी में भी वही है कि 1599 से लेकर के 1602 तक, आई मीन 1599 to 1602, इफ द गेज वेरीज आल्सो चलेगा। इसके बाहर है तो व्हील निकाल के चेंज कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रैक मशीन में नहीं करेंगे, उसका एक्सल बेंड हो जाएगा भैया, गिर जाएगी। फॉर वंदे भारत अगेन, ये तो सुपर ट्रेन है, हमारे भारत की शान है, तो इसमें क्या किया, गेज और ज़्यादा रिलैक्स कर दिया, और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, चलती भी बहुत है, लेकिन इसका बेंट एक्सल भी चलेगा, इसमें कुछ नहीं होता। क्या स्पेशलिटी है, क्या बनाया उसको तो वही जाने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे तो प्रश्न फिर अनआंसर्ड ही रह गए। हम तो यही पूछ रहे थे कि भाई ट्रैक मशीन ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसमें आपको इतनी सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बेचारी चलती भी नहीं है, तोड़ती भी नहीं है, लंगड़ाती जाती है, ब्लॉक मार के चली जाती है, उसमें आपने इतने स्ट्रिंजेंट रूल लगा दिए। और जो बड़ी हाई स्पीड में जाती है उसमें वेरिएशन भी अलाउ कर दिया, उसमें तीनों का एवरेज लेकर के फिर देखो रेंज की, अब रेंज भी तीनों की कितना डिफरेंस है वो भी स्पेसिफाइड नहीं है, वो भी RDSO बता रही है। तो ये RDSO जिसको कहते हैं ना, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब हमको ये देख करके, मेरा अपना व्यू है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग करके मैं बोलता हूँ, RDSO का नाम मैंने अपनी तरफ से रखा हुआ है, रैंडमली डबल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 2-3 तरह के स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, वहाँ भी इंजीनियरिंग की पार्शियलिटी है ना, कॉमेडी बोला था ना। Well, thanks for watching. This was what I could get about this parameter during the recent few derailments I came across. And yeah, sometimes I also lose interest in making all these videos, क्योंकि कोई देखता उतने शौक से है नहीं, गाड़ी गिरती है तो फ़ोन आ जाते हैं। यस, जितना मुझे समझ में आता मैं भी उतना डिस्कस कर लेता हूँ। But one thing I must reiterate that, dear friends, dear viewers, respected seniors, those who view all this, वट एवर आई से, जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता ना तब तक मैं बोलता नहीं। एंड आई ऑलवेज स्पीक विद रिकॉर्ड, आई ऑलवेज स्पीक विद बैकअप, एंड आई ट्राई टू बी अवे फ्रॉम पर्सनल नॉलेज बीइंग शेयर्ड। या एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, लेकिन विद ऑथेंटिसिटी, डॉक्यूमेंट रख करके बात करनी, और करता हूँ। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप मेरा चैनल देखते रहो और लोगों को भी दिखाते रहो, दोज हु आर अटैच्ड विद derailments, investigations, and such situations. I hope you will find this video useful and you will give me a thumbs up or thumbs up too for taking this much of efforts and producing this video. Namaskaram, धन्यवाद।